Welcome to The Code. Construction, design and engineering. This is India's #1 construction podcast. Jagmohan sir, good morning. Good morning. It's a pleasure to have you over, and we are discussing about rainwater harvesting today. But before that, I would like you to give the people your introduction and what you do and what your expertise is. थैंक यू ऋषभ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक. मैं जगमोहन गुप्ता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ एंड बाय प्रोफेशन आई बीन ए सिविल सर्वेंट. आई joined civil services in 1987, worked in railways and worked in several ministries including DOPT, which is the HR department of the central government, Ministry of Power. Then I was in Ministry of Jal Shakti, handling both Department of Water Resources and Drinking Water, Minority Affairs, Panchayati Raj, and Tourism. Several assignments you get as FA. So I had a regular charge of these ministries. Yeah. Then I retired. I retired in May 21, but continued in the Ministry of Jal Shakti since then as advisor in National Mission for Clean Ganga. So that's my introduction. But we also founded, me and my team, we founded an NGO called Ehsaas. Ehsaas, its full name of course is Empathetic, Humane, Socially Awakened Samaj. But acronym is Ehsaas. And we do several things. But our prime focus remains on water conservation and promoting rainwater harvesting. And that's why I'm here, because I'm working in water sector. Plus the NGO is also pushing water conservation. Absolutely. So that's why I'm here. Yes. आपके आने से पहले मैंने कुछ रिसर्च करी. मैंने बहुत कोशिश करा कि आई डू जस्टिस टू द कन्वर्सेशन, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस, इट इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द आंसर्स. तो पहला सवाल तो मैंने जो ढूंढा, या मैंने सबसे पहले जो रिसर्च करने में डाला और 4 लोगों से भी बात करी, पहला सवाल मैंने पूछा कि क्या भारत में एक्चुअली पानी की कमी है? इज़ देयर एनी स्कैरसिटी ऑफ वाटर? Any inputs there, sir? Well, if you can say yes and no, both. Yes, because India के अंदर, if I give you the perspective, India has 18% of the world population, and we only have 4% of freshwater resources. That's one. We have around 18% of cattle population. And our geographical area is only about 2.5% of the world total area. Right. So that is the perspective, and we have large spatial and temporal variations of the rainfall. Yeah. So starting from, as you have like पहले हम बचपन में चेरापूंजी सुनते होते, चेरापूंजी में highest rainfall होती है. Yeah. That has become now Mawsynram. That is also in Meghalaya. वहाँ 11,000 mm rainfall होती है every year. Yeah. Compared with 100 mm in West Rajasthan. तो इतना वेरिएशन है, स्पेशल वेरिएशन होता है, बट इनफ वी गेट द प्रेसिपिटेशन जो रेन वाटर होता है इंडिया में. बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर एबल टू कंजर्व एंड हार्वेस्ट ओनली 8% ऑफ द रेनफॉल in India. The remaining 92% or maybe about 90% goes back to the ocean. नदी नाली से होते हुए वो वापस पहुंच जाता है. So that's why it's a challenge. So that's what I would say. तो वो कभी भी रीयूज का पार्ट नहीं बनता, या किसी भी तरीके का यूटिलिटी में नहीं आता वो पानी हमारे. So we are blessed that we get sufficient rainfall in India, Right. although there are variations across the states. Right. But we are not able to harvest and conserve it. So that's a major challenge for India, and that's why you get to see the problem. आप चेन्नई की बात करें या बेंगलोर की बात करते हैं लोग, शिमला में हुआ क्राइसिस, बिल्कुल. एंड इट्स जस्ट नॉट इंडिया, इट इज़ ग्लोबल. सर अभी तो इट इज़ अ वेरी बेसिक फिनोमिनन व्हेन इट कम्स टू द हिल्स. और जितने लोग पहाड़ों में हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं, इनफैक्ट मेरे बहुत दोस्त हैं शिमला से, वो सिंपल मुझे बोलते हैं यार पहाड़ मत आओ यार, प्लीज़ डोंट डिप्लीट द रिसोर्सेज, पहले ही पानी कम है. बैंगलोर वेंट थ्रू अ वेरी मेजर वाटर क्राइसिस एट द हाउस होल्ड लेवल. रेगुलर घरों में पानी नहीं था, महीने 1.5 महीने काफ़ी परेशान रहे हैं वहाँ के रेजिडेंट्स जितने भी हैं. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिटी विच इज़ वेरी वेल बिल्ट. It is a modern city. A lot of urbanization has happened there. Right. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स बनी हुई हैं. बट आई एम स्टिल अ लिटिल स्केयर्ड विद द फैक्ट कि शायद रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली टेक, जो एक 10,000 साल पुरानी टेक है इन इंडिया, कब से हमारे यहाँ तो एक बहुत बेसिक मूल आधार होता था रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में, वो हम नहीं कर रहे हैं इवन इन आवर मॉडर्न सिटीज़.
सो आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या सही तरीका है, क्या मापदंड है. तो मैंने सोचा किससे बात करें, तो इसीलिए आज आप और मैं बैठे हैं यहाँ पर. एक और अलार्मिंग फिगर जो मैंने देखा सर वो 2030 का देखा. जिस स्पीड से हम पानी यूज़ कर रहे हैं अभी करंटली अपने देश में, उसके अनुसार अभी जो यूजेबल वाटर है या जो पोर्टेबल वाटर है वो 2030 तक इट विल ओनली रिमेन एज 50%. तो इट विल बी हाफ ऑफ व्हाट वी विल नीड. सो विच इज़ अ वेरी बिग स्केरी फैक्टर राइट देयर कि बैंगलोर जैसा 1-1.5 महीना जो बैंगलोर ने झेला लास्ट गर्मियों में, वैसा हम शायद देखने वाले हैं और शहरों में भी. राजस्थान तो चलिए बारिश कम होती है, लेकिन बाकी जगहें जहाँ बारिश अच्छी होती है, और दिल्ली में इस समय इस साल जो बारिश का आंकड़ा रहा है वो बहुत अच्छा रहा है. द प्रेसिपिटेशन वाज वेरी 1000 mm, yes, इट वाज अबाउट 1000 mm एंड एवरीथिंग वाज फ्लडेड. हमारा गुड़गांव तो अलग से, वो उसको हम वेनिस बुलाते हैं व्हेन वी जोक अबाउट थिंग्स, बट पानी भर जाता है और पानी बहुत है. हाउ कैन वी हार्नेस दिस? What are the factors in place? So let's sort of start and jump into rainwater harvesting. सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन सर, है क्या ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको नहीं पता? देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि पानी बारिश का गिर रहा है, आपके घरों में भी गिरता है, आपके स्कूल में गिरता है, आपके बगीचों में गिरता है और आपके खेतों में गिरता है. सो दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. उसको रेन वाटर को हमें सहेज के और संजो कर रखना है. तो उसको कैसे संजो कर रखना है? एज यू वर सेइंग कि 10,000 साल पुरानी परंपरा रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की. इनफैक्ट जब 2019 में मंत्रालय से हमने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून 19 में, तो बड़े विस्तार से उन्होंने मन की बात में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो इतना बढ़िया हमारा इतिहास रहा है उसकी चर्चा की. राइट. राजस्थान के अंदर परंपरा से सैकड़ों साल, 2000 साल की बात कर रहे हैं, किले जितने हैं, आप कहीं भी फोर्ट जाइए आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मिलेगा. दिखता है, आज भी कि दिखता है. पानी जहाँ गिरे उसको वहाँ पे स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी पानी से वैसे तो मिलेगा नहीं, वही दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ वाटर. तो आपका ग्राउंड वाटर है नहीं वहाँ पर, या बराबर में ओशन है, तो आपको पानी हार्वेस्ट करना पड़ेगा, या सैलिनिटी की प्रॉब्लम है. तो राजस्थान ने हमें एक मॉडल दिया था बहुत अच्छा कि सबके घरों के नीचे एक टांका होता है, टंका कह दीजिए उसको, टंकी होती है. और राजस्थान में बावड़ियाँ बहुत हैं, आपने देखे होंगी, बहुत सुंदर बावड़ियाँ हैं. दिल्ली के अंदर भी आप अग्रसेन की बावड़ी की बात करते हैं जो हिली रोड पे, सर मेरे मेहरौली में बनी हुई है. मेहरौली में बहुत है, जिसको हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं भी आया था यहाँ पे, जो फूलों की सैर लगती थी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके मैं प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, उसको रिवाइव करने के लिए आया था मैं कुछ दिन पहले जी. तो ये ऐसी बावड़ियाँ बहुत जगह हैं. एंड दीज आर ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स. तो राजस्थान में जो एक एक बूंद गिरती थी, जो छत होती है राजस्थान में घरों की, या जिससे पानी चैनलाइज होकर आता है, उसको बिल्कुल मंदिर की तरह पूजा जाता है. क्योंकि उस जल से आपका पूरा जीवन यापन पूरे साल का होता है जी. और जो घर के नीचे टैंक है उसमें तो लोग ताला लगाएंगे, घर पे ना लगाएं लेकिन उस पर ताला लगा के रखते हैं, क्योंकि वाटर इज़ दी मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो ये हार्वेस्टिंग का वो है कि हमारे देश में थी. और जैसे हम बात करते हैं कि जितनी भी सिविलाइजेशंस, जो पुरानी सिविलाइजेशंस पनपी, पहले कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस, मेसोपोटामिया की बात करें, इजिप्ट की बात करें, नाइल के बात करते हैं, तो जितनी सभ्यताएं पनपती थी वो सब नदी के किनारे. तो बिना पानी के तो कोई सभ्यता नहीं पनपती. बिल्कुल. लेकिन जैसे आपने कहा कि बेंगलोर की बात की या बाकी जो मॉडर्न टाउन्स बन रहे हैं, अब सिविलाइजेशंस अलग बनती हैं और पानी वहाँ पहुँचाया जाता है. बिल्कुल. पहले उल्टा था कि पानी के किनारे ही सभ्यताएं पनपती थी. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पानी, ये जो नए नए टाउनशिप्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी जो विच आर वाटर गजलर, उनको कैसे निपटा जाए. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. राइट. एंड समहाउ आवर सिटीज हैव बीन अर्बनाइज्ड ओवर द इयर्स कि वो देखिए जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, इंसान खाने का और अपॉर्चुनिटी का भूखा था और वो शहर बसते चले गए. तो कहीं ना कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में ओवर द इयर्स कुछ टाइम लगा भी. आज तो खैर बड़े बड़े शहरों में तो काफ़ी चीज़ों की विकसित हो गई हैं चीज़ें, बट हर जगह अवेलेबल नहीं है. टियर 2 टियर 3 अभी भी चैलेंजेस हैं. वाटर वेज अभी भी धीरे धीरे विकास बढ़ रहा है उसकी तरफ. वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग आवर रिवर वेज, वी आर मैनेजिंग डैम्स. काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या सारा दारोमदार आज भी अगर हम देखें जितना पानी हम यूज़ करते हैं उसका 25% ग्राउंड वाटर पे है. सो वी आर स्टिल यूजिंग दैट 25% ऑफ आवर वाटर इज़ ग्राउंड वाटर. be it irrigation, be it our daily purposes, be it any sort of a water scheme. तो एक बहुत बड़ा वेट हम डालते हैं ग्राउंड वाटर के ऊपर. और जहाँ वो ग्राउंड वाटर जहाँ कम होगा, स्पेशली इन अर्बनाइज सिटीज़, क्योंकि हर खाली ज़मीन बिल्डिंग बन रही है. जहाँ पर पुराने मकान थे वो टूटकर नई बिल्डिंगें बन रही हैं. पुराने मकान में तो शायद रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अरेंजमेंट था उस खुले आंगन में,
लेकिन अब वो खुले आंगन नहीं है। तो आने वाले समय के लिए विद अर्बनाइज सिटीज़ इन अ मॉडर्न होम और अ मॉडर्न बिल्डिंग, हाउ वी कैन डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग और क्या स्टेप्स हैं, उसी तरफ चलेंगे सर। Okay. Is there an IS code within the National Building Code governing rainwater harvesting? There is, of course, but those details the technical people will know. But what I'm saying is, as you rightly said, the groundwater is a major source of our water requirement, which meets the water requirement. Yeah. And it is not 25%. In irrigation, it is 60%. And in drinking water, the rural drinking water needs are met through groundwater by 85%. Wow. So that is the scale of groundwater. तो हम जो कहते हैं, जो हमारे मंत्री माननीय शेखावत साहब थे, तो एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया और वो कैबिनेट बैठी हुई थी, तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि भाई हमारे यहाँ सबसे बड़ा वाटर स्टोरेज कौन सा है? सो समबडी सेड भाखड़ा नंगल डैम, समबडी सेड टिहरी डैम, नोबडी कुड थिंक ऑफ, सबने अपने डैम्स के नाम बताए, वर्ल्ड ओवर के बताए, बट सर द लार्जेस्ट रिजर्वायर फॉर वाटर इज ग्राउंड वाटर, Yes. जो दिखता नहीं है। बिल्कुल। और दिखता नहीं है, यही एक समस्या है। वी फील हमने बोरवेल बनाया अपने घर के अंदर एंड वाटर निकाल लिया, सो वी ऑल आर एक्सट्रैक्टिंग द ग्राउंड वाटर आइदर फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस एंड फॉर इरीगेशन और मे बी इंडस्ट्रियल यूज। तो इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ओनली ऑफ अर्बन सिटीज़, इट इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल इंडिया। पंजाब जिसने हमें हरित क्रांति दी 60s में, दैट हैज़ बिकम, वहाँ पे डिप्लीशन देखिए ग्राउंड वाटर का, वो करीब 300, 400, 500 फीट या कितने मीटर चला गया वो। तो इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर एनी इंडिविजुअल टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर नाउ। उसकी कॉस्ट ऑफ बोरवेल विल बी सो हाई, प्लस इट्स नॉट सस्टेनेबल। So we have to build these urban areas as well as in the rural. So that's also a challenge of water usage and water use efficiency. ये प्रॉब्लम भी हमें एड्रेस करनी पड़ेगी इन लॉन्ग टर्म थ्रू अवेयरनेस एंड थ्रू रेगुलेशन, थ्रू डिमांड साइड मैनेजमेंट, सप्लाई साइड मैनेजमेंट, वो भी करना पड़ेगा हमें इसमें साथ। सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन पार्ट, राइट, बट देयर आर अदर एंडेवर्स। आर देयर डिफरेंट मेथड्स वेयर वी कैन रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, या वो आपको लगता है कि एक फूल हार्डी अप्रोच है कि शायद ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश ना करने की बजाय हमें कंजर्वेशन की तरफ जाना चाहिए? सी बोथ वुड से, बिकॉज विदाउट ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पहले एज यू राइटली सेड कि कॉन्क्रेटाइजेशन होने से पूरे अर्बन एरियाज में इट्स ए मेजर चैलेंज। एज आई वाज सेइंग, ओनली अबाउट 8% ऑफ द एनुअल रेनफॉल इज हार्वेस्टेड, रिमेन फ्लोज बैक टू द ओशंस, क्योंकि कहीं उसको नीचे सीप करने का वही नहीं मिलता। नहीं। और आप सबने बोरवेल लगा रखे हैं, सी नीचे जो एक्विफर होता है ग्राउंड के नीचे, देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एक्विफर। When you dig a borewell, it goes to about like suppose 100 feet. So it is not tapping into the top level of aquifer. Right. It is going to the second or maybe the third aquifer. Aquifer is something that allows water to flow. Flow. The aquifer is a layer of water. And there are different layers of water within the ground. Within the ground. Right. So जब पानी गिरता है तो वो it goes to the first aquifer. Then धीरे-धीरे सीपेज होकर सेकंड पहुंचता है, सेकंड से थर्ड, which take thousands of years. Right. सो जो सबसे नीचे होता है दैट इज़ एक्चुअली द नेशनल ट्रेजर, यू कांट एक्सट्रैक्ट दैट वो, क्योंकि वो तो बिल्कुल प्योर अमृत होता है ना, जैसे ऐसा पानी होता है। तो टिपिकली क्या होता है, जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं या नेचुरल जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है वो फर्स्ट लेयर ऑफ एक्विफर में जाती है। बट दिल्ली के अंदर, हम दिल्ली की बात अगर करें या किसी भी शहर की, तो पानी पहुँचने का तरीका नहीं बचा। बिल्कुल। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। दैट विल नॉट ओनली रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर but also mitigate the urban flooding. आप जो सड़क पे पानी देखते हैं ना, अगर आपने छतों का सारा पानी अपने घर में बचा लिया, या आपका जैसे मान लो कि कॉम्प्लेक्स है उसमें सारा पानी वहीं पे अगर आपने हार्वेस्ट कर लिया, इट विल नॉट गो टू द रोड्स। तो जो फ्लडिंग देख रहे हैं, दैट अर्बन फ्लडिंग विल ऑल्सो रिड्यूस। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वाटर हार्वेस्टिंग इज़ मैंडेटरी, बिकॉज हमारे देश के अंदर काफ़ी डार्क ब्लॉक्स आ गए हैं। डार्क ब्लॉक्स itself where the extraction is much higher than the recharge of groundwater. So these dark blocks are spreading all over India. So it is mandatory. It is very, very important that we undertake rainwater harvesting in our homes. जैसे कहते हैं ना, घर का पानी घर में, स्कूल का पानी स्कूल में, और खेत का पानी खेत में। तो पानी जहाँ गिरे वहीं पकड़ लो। So catch the rain where it falls, when it falls. So that is the slogan which was given in 2021, and it has really caught on.
Okay. तो उसकी बात करेंगे बाद में बिल्कुल. जी. Would you like to talk about policy level first? Would you like to talk about rainwater harvesting as a technique and technology first? Well, yeah, we can talk about that. See, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने जैसे कहा दिल्ली में भी, और चूँकि हम दिल्ली में रह रहे हैं अभी, इट इज़ मैंडेटरी इन दिल्ली दैट एनी प्लॉट ऑफ मोर देन 100 स्क्वायर मीटर इन दिल्ली must have a rainwater harvesting structure. Okay. But as you also know, it has remained only on paper. Because rainwater harvesting की जो टेक्निक्स होती हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड ने उसको डिज़ाइन दिया गया है, ये 100 मीटर स्क्वायर प्लॉट कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. राइट. क्योंकि उसमें वो एक वेल बनेगा, एक पिट होती है, स्पेस चाहिए उसके लिए, वो एक समस्या है उसके लिए. So, but there are ways of recharging the groundwater in urban areas in Delhi and any metro for that matter. Right. And I have been advising Delhi Jal Board on the rainwater harvesting policy. And although they do not allow the bore well, let me tell you, दिल्ली में बोर बैन है. कई जगह बैन करते हैं जी. But when I was in the member of the Central Groundwater Authority, we made an exemption for domestic bore wells. Okay. I insisted as a member, and we notified it also that there are exempt category for bore well. Because why do dig a bore well in your house? घर में क्यों bore well करते हैं? क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड और any local जो water agency है, it's not able to supply adequate water. काफ़ी जगह समस्या है. तो I said ये bore well को आप exempt करिए, but there are ways of recharging the groundwater through the bore well also. Yes. In fact, एहसास NGO का जो USP है वो यही है कि हम bore well के थ्रू रिचार्ज करते हैं. So you don't need that kind of a pit structure जिसमें स्पेस की होती है. Okay. And you can use the same bore well for recharging the groundwater जिससे आप extraction कर रहे हैं. Okay. And we have installed these structures pan India, at least 8 states we have covered, including Rajasthan, जहाँ पे उसी bore well से आप रिचार्ज कर रहे हैं. How is it done? So you basically channelize all the rain water के जो पाइप होते हैं छत से आते हैं. बिल्कुल. उनको जोड़ के उसको एक बीच में इनलाइन फिल्टर लगता है. It's a very simple methodology. We have built up 2 filters, which is wall mounted and floor mounted. Okay. और उसके थ्रू वाटर रिचार्ज फिल्टर होके then it goes to the bore well. तो उसी में कनेक्ट कर देते हैं. So we've done about 1000 such schools, houses and industries pan India. सुंदरबन में भी लगाया हमने. सुंदरबन एक्चुअली आपको उस बोरवेल के लिए फिर सेकंड पाइपलाइन डालनी पड़ेगी? कोई नहीं डालनी पड़ेगी. उसी पाइपलाइन में कनेक्ट कर इस पाइपलाइन में टी लगा के उसको कनेक्ट कर देते हैं. ओके. तो साइड से पानी गिरता रहता है और बीच से वो पानी निकलता रहता है. तो जब वो वाटर हम पंप अप नहीं कर रहे तो वो नीचे रिफिल हो रहा है एक तरीके से. फिल तो होता रहेगा बिल्कुल पानी. उसके बहुत एडवांटेज हैं ऋषभ, बिकॉज उसमें एक तो आपके वाटर लेवल जो है बोरवेल में इट विल नॉट गो डाउन. यस. बिकॉज इट विल कीप रिचार्जिंग. एब्सोल्युटली. इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर बिकॉज रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. वो नीचे नहीं जाएगा. एंड यू कैन हार्वेस्ट फ्रॉम योर रूफ टॉप फॉर अराउंड 2500 स्क्वायर फीट 2 lakh liters of water every year. So this is the potential of this rainwater harvesting structure, which cost typically for a house मिला के about 25-30,000, and in a school it cost about 60,000. So with this kind of solutions available, where is the problem? The people must come forward. You're saying the cost of installation in a household is 25-30,000? It's about 25-30,000 with a borewell. If there is a borewell which exists, so the team, the Hassas, what they do is they connect all the pipes and through a filter they channelize the water to the same borewell. और एक्वावर्स का जो सिस्टम होता है वो स्लो होता है, नेचुरल होता है, क्योंकि उसके अंदर छोटी छोटी क्रिवाइसेस होती है, पानी धीरे धीरे ग्राउंड लेवल धीरे-धीरे जाएगा वो. So इस केस में जल्दी जाएगा. इस केस में जल्दी जाएगा because it will go to the maybe the second level of pipeline के थ्रू जैसे पानी निकाल रहे हैं आप. Right. तो वो एरिया रिचार्ज भी होता रहेगा. तो ये लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो इशू रहता है ऋषभ, बिकॉज वी हैव बिकम वेरी वेरी सेल्फिश एंड आवर इंडिविजुअल सेंट्रिक. वो कहते हैं साहब मैं पानी बचाऊंगा, क्या गारंटी है पानी मुझे मिलेगा. तो ये प्रश्न एनजीओ फेस करती है. मैं तो उनको ये कहता हूँ देखिए पानी ठीक है नीचे जो है वो पड़ोस में चला जाएगा, मे बी आप योर नेबर विल यूज़. पड़ोस भी तो अपना ही होता है. नहीं, वी आर यूजिंग अ नेचुरल रिसोर्स. वो सभी का है, वो सभी का है, किसी इंडिविजुअल का तो हक नहीं. बट यू नो पीपल क्वेश्चन दिस, व्हाई शुड आई स्पेंड दिस मनी. सो एज यू सेड, व्हाई डोंट दे कम फॉरवर्ड. इफ दे फील कि वाटर मेरे पास ही मिलेगा, दे मे बी दे विलिंग टू and spend. What is the amount? About 25-30,000 is no amount. But let me tell you, there are water conscious people. they said सर हमारे यहाँ थोड़ा शेड भी है ना, अगर कोई 10 by 12 का शेड जो DD फ्लैट्स हैं उसमें हार्वेस्ट करा रहे हैं लोग. और एक टैंक रख लिया वहाँ पे 500 लीटर का. At least during rainfall, during monsoon season, that remain filled and you can reuse this water. So reuse of water is very important for our future water conservation. And water. But challenging situations भी तो हैं. For example, we are all nowadays
ज़्यादातर जो हाउस होल्ड्स हैं वो कोऑपरेटिव हैं. सो बेसिकली यू लिविंग इन सोसाइटी. Right. अपार्टमेंट्स में लोग रह रहे हैं. अ सिंगल, लेट्स से अ G+3 स्ट्रक्चर हैज़ 4 फ्लैट्स. सिमिलर इज़ द सिचुएशन और द अरेंजमेंट इन अर्बन सिटीज़. जहाँ भी आप देखेंगे एक अच्छी हाउसिंग जहाँ है, जहाँ एजुकेटेड लोग रह रहे हैं, वहाँ यूजुअली स्टैक्ड हाउसिंग है. राइट. अब स्टैक्ड हाउसिंग में दारोमदार शेयर हो जाता है कि अगर बिल्डिंग के अंदर पुरानी बिल्डिंग्स हैं 30 साल पुरानी DDA की या किसी की, तो उनमें लिफ्ट भी शेयर्ड कॉस्ट पे लगाते हैं लोग. अब वहाँ ऐसे एरियाज़ में कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया जाए, क्योंकि अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक किसी सोसाइटी में बनाएंगे, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंक्रोचमेंट. मे बी यूर यूजिंग गवर्नमेंट लैंड, इट वुडंट बी सैंक्शनड. सो जब मैं पॉलिसी की आपसे कह रहा था बात, इट इज़ दो इट्स अ गुड थिंग टू सॉर्ट ऑफ बैन द बोरिंग ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस और अदर पर्पसेस, बट कहीं ना कहीं एक पॉलिसी लेवल ये भी आना चाहिए फॉर रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ कि उनको कुछ प्रोविजंस मिल जाए इस तरीके के, दैट दे कैन एक्चुअली क्रिएट दोज एवेन्यूज फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग विद अ शेयर्ड कॉस्ट मॉडल. मे बी RWAs हैं, दे कैन बी चैनलाइज्ड. हर तरीके का आज हम 30 साल पुराने स्ट्रक्चर्स को रिहेबिलिटेट करने की बात ही कर ही रहे हैं. ऑलरेडी उनके सिस्टम्स धीरे धीरे बनते जा रहे हैं. देयर आर एजेंसीज, देयर आर प्राइवेट स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हु आर हेल्पिंग ऑल दीज सोसाइटीज. सो मे बी वी कैन एक्चुअली ऑल्सो लुक इन टू दिस इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, स्पेशली इन कोऑपरेटिव हाउसिंग, क्योंकि ये एक इतना बड़ा चैलेंज है. अगर कोई 4 लोग भी चाहें तो 400 लोग तैयार हैं उसका बहाना ढूंढने के लिए, ना करने के लिए. और मैं एक चीज़ सीखा हूँ सर कि जब तक आप किसी को एक इंसेंटिव नहीं देते ना कुछ करने का, वो स्टेप नहीं लेते. फॉर एग्जांपल सोलर है. अब सोलर लाइटिंग कोई क्यों लगाता है सोलर पैनल्स? क्योंकि नेट मीटरिंग सिस्टम का लालच है. राइट. कि चलिए बिजली का बिल कम होगा. आज पानी का बिल मुझे अच्छे से ध्यान है, 5-7 साल पहले 100 रुपये का बिल आता था, 125 रुपये का बिल आता था. वही पानी का बिल अब 1100-1200 रुपये का आता है. एक जीरो ऐड हो गया उसके अंदर विदिन 5 ईयर्स. और आने वाले समय में हम कब तक एक गवर्नमेंट की तरफ देखते रहेंगे, बोलेंगे कि आप हमारे लिए प्रोविजन करिए. आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी ड्यूरिंग कोविड. मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने एक मोटो दिया था कि बॉस वी हैव टू बी आत्मनिर्भर, नॉट जस्ट एज अ कंट्री बट एज एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑल्सो. सो व्हेन इट कम्स टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आई सी द चैलेंज ऑल्सो समटाइम्स कि लोगों के मनों में इनहिबिशन क्या है. शायद वो लैक ऑफ अवेयरनेस एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है रादर देन एनीथिंग एल्स. एक इंटेंट भी इशू है कि हम क्यों ये पंगा लें, स्पेशली इन कोऑपरेटिव हाउसिंग. वो तो चांस मुझे लगता ही नहीं है कि कभी ऐसा बन पाएगा, एटलीस्ट अगर पॉलिसी लेवल पे नहीं आया तो. सो पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, द पॉलिसी डज से दैट यू हैव टू हैव ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन गेटेड कॉलोनीज जो हैं वहाँ पे. ओके. हाँ, इट्स मैंडेटरी. एंड वी हैव बीन अप्रोच्ड बाय द एहसास NGO हैज़ बीन अप्रोच्ड बाय सेवरल गेटेड कॉलोनीज कि सर हमारे यहाँ सर्वे करा के आप हमारे यहाँ सिस्टम लगा दीजिए. But that's a question of funding also, as you rightly said. People say कि भाई हम इतना पैसा क्यों खर्चें, because एक कॉलोनी में लगाने में the cost is much higher. It may cost around, because you know there are a lot of work involved, labor involved, the piping is involved, then the pits have to be made depending on the size of the colony. So funding is a challenge, but some society have got it done. They fund that, individual contribution is there, and the RWA is effective. They are able to generate that fund. That is one. Secondly, as you said about the bore well, some societies have taken approval to get a bore well done. Yes, for only the rainwater harvesting. Oh. So recently we went to Patkar Ganjban society. They says we have taken approval for 5 bore wells for this purpose. So that bore well is also possible. But generally for cooperative societies they give, but for individual houses they do not give. Although I have been telling Jal Board, see दिल्ली में आप कहते हैं कि कुल 8-10 हज़ार बोरवेल इलीगल है, बट मैं कम से कम यहाँ पे 30 से 40 एवरी हाउस हैज ए बोरवेल. सो यू मे नॉट हैव इट ऑन पेपर. सो दैट इज द डिफेक्टो सिचुएशन. सो व्हाई डोंट यू लीगलाइज दिस बोरवेल्स एंड इंसिस्ट ऑन ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू द बोरवेल. मेक इट मैंडेटरी है, लगाइए बोरवेल और इस बोरवेल के थ्रू हार्वेस्टिंग कराइए. सो दिस विल गिव अ विन विन. सो वी हैव बीन अपीलिंग टू द दिल्ली गवर्नमेंट. इनफैक्ट दिल्ली जल बोर्ड को जब अपने प्रेजेंटेशन दी थी, they got our model installed in schools, and the team came 2-3 times and they finally approved that model. This sounds like a very good idea, sir. This is a JVK Ehsaas model. In fact, I can tell you about that JVK. Please. JVK stands for 3 scientists, 3 doctors. Okay. J stands for Dr. PC Jain, who's done phenomenal work in water conservation in Udaipur. J is my name also, Jagmohan, that's a different issue, but this is PC Jain. V stands for Dr. Sandeep Vidyarthi, who is a groundwater scientist. And K is Dr. Kedar Vaishnav. He's a BDO in state. So we all came together and we first launched this JVK Ehsaas filter in Udaipur district in 19. Okay.
And since then we got a trademark and everything. So it's a very low cost solution. आप घर के अंदर अगर 25-30 हज़ार रुपये में ऐसा सिस्टम लगा के आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, so who stops you? This cost is low because in a situation where there is a There is a borewell. नहीं तो फिर वाटर टैंक बनाना पड़ेगा. नहीं तो नहीं, then the borewell आपको बनाना पड़ेगा. Borewell is prohibited in Delhi. Yeah. So that's why I keep Delhi Jal Board that why don't you legalize these borewells? And घर के अंदर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. घर में वो he'll take out water only what he needs for the household. Right. आप स्कूल उसमें इंडस्ट्री में मत करिए, बाकी जगह करिए, पर घरों के लिए तो अलाउ करिए, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. बिल्कुल. So but we have been spreading this word. People are coming forward. बिल्कुल. एंड जैसे हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है. सो एवरी पर्सन हैज़ टू बी कनेक्टेड विद वाटर कंजर्वेशन. हाउ डू यू डू इट? Spread awareness like this podcast. When it reaches out to people, certainly people will feel you have a low cost solution available, and then why don't promote this? सर, पानी की कमी का एहसास ना उस यंग जैन को जब होता है जब उसने नहाते टाइम साबुन लगा रखा है और पानी चला जाता है. पानी चला जाता है तब वो सोचता है कि मैं क्या करूं. इट हैज हैपेंड विद मी वंस. करा कुछ नहीं था, आवाज लगा के बोला अपनी वाइफ को कि प्लीज मोटर चला कर दीजिए. लेकिन वो लिबर्टी है ना अभी मेरे पास. फर्ज करिए वो पानी ही ना हो तो क्या हाल होगा. That is the luxury you enjoy, because Exactly, you it's are a blessed. But not everyone. You cannot afford a borewell. Not everyone household can afford a borewell. If the water goes down, suppose 700-800 feet में चला जाएगा, how many people will be able to dig borewell? So the idea is that you must connect with rainwater harvesting. और पानी की समस्या की वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देश में है वो इरिगेशन का है. इरिगेशन लार्जली इज डन थ्रू फ्लड इरिगेशन. क्योंकि पंजाब में जो सुनते थे ना बचपन में, अरे ट्यूबवेल चल रहा है, नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं. यू डोंट नो कि दिस हैज बीन अ वाटर गजलर. और पंजाब की धरती खाली हो गई बिल्कुल पानी से. एंड दैट्स रेजिंग ए सैलिनिटी इशू. बहुत से challenges हैं. So we have to enforce this water use efficiency not only in irrigation, industry also, and also the houses. But is rainwater actually usable, sir? It is usable. सर आज हम एसिड रेन की दुनिया में रहते हैं, मतलब वो पानी सेफ है यूज़ के लिए. दैट्स द देखिए ऐसा है, दैट्स ए चैलेंज, बट इट इज़ नॉट दैट रेन वाटर इज़ द ओनली सोल्यूशन, ओनली सोर्स ऑफ द वाटर फॉर योर लाइफ, द फ्रेश वाटर. सो रेन वाटर, maybe some places there is an acid. It might not be drinkable, but बाकी चीज़ें. No, it is drinkable also. We have Ehsaas has installed in Sundarbans. I was traveling to Sundarban and I was with the forest conservator. I said यहाँ तो मतलब टूरिस्ट फॉल क्या है इतना यहाँ पर. मतलब सर यहाँ टूरिस्ट इसलिए नहीं रुक पाते हैं क्योंकि यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का बहुत बड़ा इशू है. Wow. ऋषभ, next week when I came back to Delhi, I sent my team to Sundarban, Ehsaas team, and we installed 5 structures in forest guest house, school and houses with a overhead tank, 1000 लीटर का या 500 लीटर का, and the overflow will go to recharge the groundwater. So you harvest the rainwater for drinking, and then remaining will recharge the groundwater because there is a large contamination, arsenic contamination in Sundarbans and fluoride. ये गंगा बेसिन में प्रॉब्लम है along the Ganga. So with this rainwater harvesting through this borewell which you are using for drinking purpose, bathing purpose, irrigation purpose, वो तो यूज़ करते हैं हम ग्राउंड वाटर. Okay. So if you filter this, although chemical filtration नहीं होता उसमें, उसमें silt filtration है, बाकी तरह की जो उसमें impurities हैं वो निकल जाती हैं, but chemical contamination नहीं होना चाहिए. So this is important when you do the rainwater harvesting. You must ensure there is no chemical contamination in that water. Otherwise, it will go and pollute the groundwater also. Okay. That call is that security and that safeguard is exercised by the NGO when they harvest the rooftop water. Okay. So roof should be clean, generally clean. There should be no chemical contamination possibility on the rooftop. So it is definitely drinkable. राजस्थान में सारे उसमें पिया है, पूरे सदियों से पीते हैं उसी पानी को. और कहाँ से आता है पानी? बात तो सही है. यही बात है. सर मैं बिफोर आई कम टू द रेगुलर हाउस होल्ड, मैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कुछ समझना चाहता हूँ. Okay. व्हाट काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम्स आर देयर विच आर बीइंग यूज्ड करंटली? कैसे किस तरीके के फिल्ट्रेशन सिस्टम है? क्या वो पेबल बेस्ड सैंड बेस्ड सिस्टम्स ही चल रहे हैं या आज टेक इवॉल्व हो चुका है जिसमें हमें बार बार फिल्टर बदलने की ज़रूरत है? थोड़ा सा आप गाइड करिए उस बारे में. देखिए क्या है कि ट्रेडिशनल जो फिल्टर सिस्टम है दैट इज़ द बेस्ट. एंड जनरली आप पूरे इंडिया में देखिए, आप कहीं भी गूगल करेंगे, एवरीवेयर इन इंडिया देयर आर वाटर वॉरियर्स. ये नहीं कि खाली हम ही कर रहे हैं, ऐसे लाखों लोग लगे हुए हैं इसके अंदर. बिल्कुल. तो वो फिल्ट्रेशन जो होता है, जैसे आपने कहा
पेबल है, सैंड फिल्टर लगे होते हैं, सैंड होती है या ब्रिक्स होती है या जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन होती है, बट वी ऑल्सो यूज़ एक्टिवेटेड कार्बन जो आर में भी यूज़ करते हैं. सो दीज आर टिपिकल द फिल्टर मीडिया विच इज़ यूज्ड. बट दी JV के एहसास फिल्टर जो बने हुए हैं उसके अंदर बाकी मीडिया तो है. एक्टिवेटेड कार्बन के लिए उन्होंने एक नया डिज़ाइन इनोवेशन किया है कि उसके पाउचेस रखते हैं वो. सो व्हेन द फाइनल स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन के बाद जब वहाँ पे रहता है उसमें बॉक्स में, दे पुट दोज एक्टिवेटेड कार्बन पाउचेस and you can, which is an additional manual process within the stored water. After the filter. After the filter. After the filter it is put there and then you can remove it and replace it. So that is the only thing. तो आपको बाकी फिल्टर को चेंज करने की जरूरत नहीं. कुछ जरूरत नहीं है उसको. And through the backwash only that also. So that's an additional filtration layer which is created. And through backwash this filter is also cleaned. So that's why there is zero maintenance of this filter. Okay. That is the beauty. And I've seen system you can see in Rajasthan, because this is a called a Devas filter. Devas in 2004-05 my batchmate was collector there, M. Mohan Rao, Madhya Pradesh cadre. Okay. So this was designed in Devas, but we modified it subsequently. तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो. लोग घर में 20-20 साल से लगे हुए हैं, कोई इशू नहीं है किसी तरह का. Okay. The only thing is that in fact when you install it in a school, why we are focusing on school? स्कूल में एक सिस्टम लगाएं, आप वहाँ पे एक छोटा सा टीम बना दें, एक एनवायरनमेंट क्लब है या वट एवर इट इज़. दो बच्चे जो हैं दे विल कनेक्ट अदर स्टूडेंट्स विद दी वाटर कंजर्वेशन. एंड एक सिस्टम से आपने 300-400 बच्चों को कनेक्ट कर दिया. सो व्हेन दे गो होम, जैसे पोल्यूशन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन की बात करते हैं, पटाखों पे कितना स्कूल के अंदर ड्राइव चला. बिल्कुल. एंड नाउ यू सी घर के अंदर पटाखे खरीदते हैं तो बच्चे मना कर देते हैं. Yes. सेम थिंग विल हैपन थ्रू दिस स्कूल मॉडल. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एहसास NGO को वाटर हीरो का अवार्ड दिया कि डूइंग ए फिनोमिनल जॉब. तो वी हैव रीच्ड आउट टू महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, नागालैंड में भी लगाए हमने सिस्टम. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, सब स्टेटों में लगा रहे हैं. तो हमें एक अच्छा सीड प्लांट करने की जरूरत है इन द नेक्स्ट जनरेशन टू एक्चुअली हैव दिस आइडियोलॉजी व्हिच सेज कि इसके बिना तो घर बनता ही नहीं है. करेक्ट. सो इस स्कूल के मॉडल, राइट, स्कूल के मॉडल से ये फायदा कि सम ऑफ दीज चिल्ड्रन इन फ्यूचर विल बिकम वाटर चैंपियंस. दैट इज द मॉडल. जो सीड की बात करें ना, ये सीड हमने यही प्लांट किए. राइट. सो करीब 1000 स्कूलों में हम लगा चुके हैं पैन इंडिया. और इनमें से बच्चे निकलेंगे फ्यूचर. तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह की बात करते हैं, हु इज़ ए वाटरमैन ऑफ इंडिया, या आप लापोडिया की बात करें. आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट स्टोरी. लापोडिया नाम सुना आपने? एक राजस्थान में एक गांव है जिसको बचपन में हम हरियाणा में लपाड़िया बोलते थे. लपाड़िया मीन्स समबडी हु इज गुड फॉर नथिंग. तो किसी को कंडेम करना है तो लपाड़िया है. बिल्कुल. इट वर्ड केम फ्रॉम राजस्थान, दैट लापोरिया विलेज. क्योंकि वहाँ पे पानी का कोई फैसिलिटी नहीं थी. द यूथ वॉज टोटली शैटर्ड और दे डोंट नो, मतलब दे वर डायरेक्शनलेस, क्या करना है लाइफ के अंदर. राइट. बट इन 80s वन ऑफ द सरपंच, ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव. उन्होंने वाटर कंजर्वेशन वहाँ शुरू किया. नाउ इफ़ यू गो टू लापोडिया एंड यू कंपेयर प्री 1980 एंड पोस्ट 1980, इट्स अ सी चेंज एंड इट्स ऑल ग्रीन नाउ. परिभाषा बदल गई, शब्द की भाषा बदल गई. तो लापोडिया का जो पहले कंडेम करते थे, यू टेक प्राइड इन आई एम फ्रॉम लापोडिया, यू नो दैट वे. इसी तरह हिबड़े बाजार बात करें हम, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से मॉडल हैं पैन इंडिया. यहाँ पे लोकल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं. इनफैक्ट मंत्रालय से हमने ऐसे वॉरियर्स के लिए पद्मश्री, काफ़ी लोगों को पद्मश्री दिलाई है. जी. बिकॉज वी मस्ट टेल पीपल इट्स नॉट ए सिंपल वर्क. अभी जो शुरुआत हुई थी इंडिया वाटर वीक की, 8th इंडिया वाटर वीक अभी भारत मंडप में हुआ था लास्ट मंथ. तो उसमें 2 महिलाओं को हमने सम्मान दिया. एक मेघालय से महिला थी और एक दूसरी महिला, उन्होंने अपने गांव में ही काम किया. और गांव के महिलाओं को, जो अनपढ़ महिला हैं बट दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. तो वाटर हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. सर, अहमियत जो होती है ना वो अभाव से आती है. वो अहमियत जब महसूस होती है जब अभाव होता है. एंड आई होप वी आर नॉट टू लेट, यू नो, इवेंचुअली. तो आज इन चीज़ों के लिए जाग जाएं तो अच्छा है. बिकॉज सिटी लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट अगर पानी नहीं है. सर्टेनली. और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं. मैंने कितने वाटर टैंकर्स देखे हैं एंड दे आर सप्लाइंग वाटर टू ऑल दीज हाउस होल्ड्स. और सब में क्लोरीन डला होता है. इट्स नॉट हेल्दी वाटर इन एनी केस, इट्स हार्ड वाटर. देयर इज़ दिस एक चीज़ और है, जब आप रेन वाटर की बात करते हैं, इट्स नॉट हार्ड वाटर, इट इज़ फ्रेश वाटर. राइट. एंड व्हेन यू कंपेयर इट टू द ग्राउंड वाटर विच इज़ यूजुअली हार्ड वाटर, सो द यूज़ इज़ एक्चुअली, आई डोंट नो लोगों को इनहिबिशन क्यों है अभी भी. कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, तो बारिश का पानी तो यूज़ ही नहीं हो सकता. So there is that mental block. I live in a cooperative housing जहाँ stacked housing है, apartments हैं.
और छतों की ममटियाँ बनी हुई हैं, बाकायदा उनसे रेन वाटर के लिए पाइप Right, लगे हुए हैं, right. एग्जिट के लिए पानी की निकासी के पाइप्स लगे हुए हैं, और उनको हम चेक भी करते रहते हैं, ठीक भी करते रहते हैं, क्रैक्स भी रिपेयर होते रहते हैं, सब चीज़ रिपेयर होता रहता है। क्या मैं ऐसी एक हाउसिंग के अंदर उन पाइप्स के थ्रू कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाकर कैन आई रीप्लेनिश द वाटर टैंक्स विच आर देयर एट द ग्राउंड लेवल Certainly. and then use that water to pump up the Yeah. storage upwards? So that is what also tell people कि आप जहाँ पे पानी की समस्या होती है आप इस वाटर को अंडरग्राउंड में स्टोर करिए। देहरादून में हमने एक प्रोजेक्ट कराया वहाँ पे जो PIG जो अपना PG एकोमोडेशन होती है, तो वहाँ पे 20-20 हज़ार लीटर के टैंक उन्होंने बना दिए। बिल्कुल। और देहरादून में उत्तराखंड में बहुत पानी होता है, तो सारा पानी स्टोर हो जाता है वहाँ पे, और उस स्टोरेज से देन इट इज़ रीयूज्ड फॉर बेदिंग, फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो, बट यू मस्ट गेट दैट वाटर क्वालिटी टेस्टेड, यू नो, ड्रिंक से पहले से। अब जो डैम्स में पानी आता सब है लग जाता है आजकल, यूवी फिल्टर्स आते हैं, क्या क्या आता है? कोई इशू नहीं है उसके लिए। आप यूवी फिल्टर लगा के करिए, खाली आप उसको आरओ मत बनाइए। बिल्कुल। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, काफ़ी आरओ मैन्युफैक्चर, आई नो सम ऑफ द मैन्युफैक्चर, दे से सर हम आरओ यूज़ ही नहीं करते अपने घर में, इट इज़ ओनली फॉर सेलिंग। वी ड्रिंक दिल्ली जल बोर्ड वाटर डायरेक्टली। अल्कलाइन होता है ना वो, तो वो प्रॉब्लम है तो जो डैम्स में जो पानी आता है, डैम के अंदर स्टोरेज जो बने हुए हैं हमारे, वो किस लिए यूज़ होता है? इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। तो ड्रिंकिंग वाटर डैम से ही आता है ना, एंड डैम से पानी कौन सा, रेन वाटर ही तो है पानी। द ओनली थिंग इज यू मस्ट टेस्ट इट्स क्वालिटी बिफोर यू ड्रिंक इट, सो दैट सेफगार्ड वी हैव टू एक्सरसाइज। तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। आपके मुताबिक एक सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम इन अ सोसाइटी और इन अ हाउस और इन अ फैक्ट्री और इन अ वेयर हाउस या इन एन ऑफिस बिल्डिंग किस तरीके से होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए उस बारे में, एंड इन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स कंपेयर टू न्यू बिल्ड, किस तरीके से काम होगा? थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप बताएं तो। ओके, देखिए ऐसा है, मैं अभी हाल की बात करूँ, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होते थे BD गुप्ता जी, हाँ जी, हिज फैमिली इज़ नोन, तो उनकी डॉटर दिनोद है, एक गाँव है भिवानी से आगे जाके, शी इज़ कंस्ट्रक्टिंग ए हॉस्पिटल एंड ए धर्मशाला। ओके। तो शी सेड आप डिज़ाइन करिए सिस्टम, सो देयर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ मेट मी नंबर ऑफ टाइम्स। उनका जितने भी रेन वाटर के पाइप हैं उसमें हमारा JV के एहसास का वॉल माउंटेड फिल्टर लगेगा, ओके, एंड उसके थ्रू पानी जाएगा उस अंडरग्राउंड टैंक में, एंड दिस वाटर विल बी अगेन यू नो थ्रू ए मोटर, इट विल बी पुट ऑन दी जो रूफ टॉप के जो टैंक्स हैं, ओके। so this will be reused. So you must, in an old society also, it is possible whether you can dig an underground tank or you can also put an overground. The plastic के जो आजकल tanks आते हैं, वो जो टैंक्स आते हैं 1000-2000 लीटर के, depending on the space what you have, depending on. So that is possible, and the overflow of that tank can go to the whatever way, the way it is now going. Whether you are recharging the groundwater, it is going to the nala also, I don't know, depending on the society. I have generally seen in 90% of the society is put on the drain, और नाले से निकल के वो पहुंच जाता है वापस। वो तो ड्रेन्स, दैट्स अ स्टैंडर्ड थिंग। yeah. तो लोगों का पानी गिर रहा है, बस ये हमारे घर पे ना गिरे, बाकी निकल जाए कहीं भी। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो किसी भी एग्जिस्टिंग सोसाइटी में इट इज़ पॉसिबल टू डू। आप पाइप्स के अंदर एक फिल्टर लगाइए और उस वाटर की चैनलाइज करके आप अंडरग्राउंड टैंक या ओवरग्राउंड टैंक में स्टोर कर लीजिए, एंड देन रीयूज इट। इफ यू डोंट वांट टू यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, बट यू कैन यूज इट फॉर अदर पर्पसेस, रेगुलर जॉब्स, क्लीनिंग, वॉशिंग, एवरीथिंग, सबके लिए सब कुछ यूज यूज हो सकता है। पानी को पौधों को पानी दे सकते हैं, आप सब गाड़ियाँ धुलवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और घरों में लोग आजकल ड्यूल पाइपिंग भी करते हैं, वेयर जो एक ब्लैक वाटर होता है, ग्रे वाटर होता है। तो ब्लैक वाटर ऑफ कोर्स विल गो टू दी STPs एंड ऑल, बट द ग्रे वाटर, देयर आर टेक्नोलॉजी अवेलेबल वेयर यू ग्रे वाटर कैन ऑल्सो बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड। तो अपने यूज़ करिए उसको, फ्लशिंग के लिए यूज़ करिए, राइट, या बर्तन धोने के लिए करना है तो जो आपका किचन का वेस्ट है या आपका वॉश बेसिन का है, उस ग्रे वाटर को आप क्लीन करके यू यूज़ इट फॉर अदर पर्पज इन द हाउस, बट दैट यू हैव टू डू एट द टाइम ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन। एग्जिस्टिंग हाउस में करना आसान नहीं होता है उसमें, क्योंकि काफ़ी लोगों की तो अंडरग्राउंड पाइपिंग भी है, वो भी एक समस्या है। यस। और जनरली जब आप घर बनाएं, इफ़ यू आर एबल टू टेल पीपल कि घर बनाने से पहले जो रूफ टॉप का जो रेन वाटर का पाइप है, दे शुड नॉट कनेक्ट देयर बाथरूम और दी बालकनीज विद द सेम, ऑफ कोर्स, विद द सेम, लेकिन लगे होते हैं, बट लेकिन काफ़ी घरों में दिस हैज बीन यूज्ड, मिक्स कर देते हैं। सो देन यू कैन नॉट यूज इट फॉर हार्वेस्टिंग, एंटायर पर्पस ऑफ इट, राइट। तो एकदम ही सिस्टम फेलियर है एक तरीके से। तो काफ़ी सोसाइटीज में देखता हूँ वो जो अप्रोच करते हैं, हमारी टीम जाती है टेक्निकल, बिकॉज आवर NGO इज supported by a lot of retired central groundwater scientists and also Delhi Jal Board engineers who have done rainwater harvesting all their life. तो वही टीम जाती है because they volunteers. Exactly. तो वहाँ जाके देखते हैं तो सब काला हो गया पूरे, जितने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है बना तो देते हैं with great fanfare and lot of investment, but they don't maintain it.
they don't know how to do it. So the rainwater harvesting pits have to be cleaned and maintained every year. If not every year, then at least every 2 years. Yeah. तो उसका फिल्टर मीडिया क्लीन करना है, वो देखना है, पर लोगों ने उसको वो बना दिया अपना उसके लिए STP है बिल्कुल। तो बहुत चैलेंज है इसके लिए। एंड यू आर एक्चुअली कंटेमिनेटिंग द ग्राउंड वाटर, बिकॉज उसमें बोरवेल भी लगे हुए हैं। सो इट मस्ट हैव ऑलरेडी डन दैट, सो दैट ग्राउंड वाटर का जो एक्विफर है दैट इज गॉट पोल्यूटेड, सो यू कांट ड्रिंक दैट वाटर नाउ। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इट्स एन अवेयरनेस एंड ऑल्सो एडवाइजिंग दैम टू मेक द राइट काइंड ऑफ rainwater harvesting structures. The generation before mine and previous generation before that, उनको ये आइडिया था, क्योंकि होते हुए देखा उन्होंने बचपन से, क्योंकि पानी की सप्लाईज नहीं होती थी, पाइपलाइंस ही नहीं होती थी। उस तरीके से वो सोनिया विहार वाला वाटर आता है। आज घर पे तो लग्जरी बहुत अच्छी है, जब भी मोटर ऑन करोगे पानी मिल जाता है, सुबह पानी हमारे रिप्लेनिश हो जाता है, बिल्स आ जाते हैं, हम बिल पे कर देते हैं। वी आर लिविंग इन दैट वर्ल्ड विच सेज ओके ऑटो डिलीवर इट टू मी, आई विल पे फॉर इट, बट I will pay for it is not just the solution for everything, right? Unfortunately, we live in a time where बारिश के पानी की निकासी बनाना हम चाहते हैं कि मेरी सोसाइटी में कहीं पानी ना भर जाए, क्योंकि इंटरनेट पे मीम्स आ जाएंगी दुनिया भर की। इफ़ गुड़गांव इज़ फ्लडिंग, इफ़ दिल्ली इज़ फ्लडिंग, तो हम बोट लेके निकल जाएंगे। वो सब जोक्स आते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू एक्चुअली हार्नेस दैट वाटर इटसेल्फ। there must be better ways in which we understand, and at individual levels and at society levels. I keep saying associations का फ़ायदा ही क्या है कि अगर आप एक common cause की तरफ काम ना कर सकें। RWAs are not there to create a problem for each other, but to find solutions together. Ideal world में, but ऐसा होता नहीं है। Different type of people have different ideologies. जहाँ structural safety की बात आ रही है, अभी भी कई जगह consensus नहीं है पुरानी societies में। नई सोसाइटीज़ जो बन रही हैं वहाँ स्ट्रक्चरल सेफ्टी का इशू नहीं है, बट इन चीज़ों का इशू है। बट को एग्जिस्टेंस इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम इवन इन इंडिविजुअल हाउसिंग। अगर आप साउथ दिल्ली के घर देखें, जहाँ इंडिविजुअल बड़े बड़े घर, सुंदर सुंदर घर बनाए हुए हैं 30-30, 40-40, 50-50 करोड़ रुपए के, वहाँ पर ये 50,000 से या लाख रुपए की जो कॉस्ट है, ये पे करने के लिए हम तैयार नहीं है, लेकिन महीने का 1,500, 2,000, 5,000 रुपये का पानी का बिल हम पे करने के लिए तैयार हैं। तो जो आप बात कह रहे थे कि जिन्होंने लोगों ने बचपन में पानी की किल्लत देखी है, दे आर वेरी कॉन्शियस। पहले घरों के अंदर एक एक बूंद को बचाते हमने घर में देखा है। सर मैं जिस घर में बड़ा हुआ, मतलब जहाँ 10 साल के करीब हम रहे, वहाँ मेरे फादर का ड्रीम होम था। वो मुझे याद है कि उसमें हालांकि बोरवेल था, लेकिन वो बोरवेल हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि मेरी मदर जो है ना, वो ऐसी हैं कि शुरू से कि नहीं, तुम पानी ख़राब नहीं कर सकते, हम बिजली नहीं फूंक सकते, इतना रईस नहीं हो तुम। हमें डांटा गया बचपन से। अगर फालतू कोई पंखा लाइट जल रही होती थी, हमारे फादर घर में घुसते थे, हाँ भाई तेरा बाप कलेक्टर लग गया क्या, सीधे ऐसे बोलते थे, बहुत ज़ोर से, गुस्सा से। उनका तरीका बड़ों का ऐसे ही होता था पहले। तो हमारे दिमाग में फिट हो गया था कि ना बिजली वेस्ट करनी है, ना पानी वेस्ट करना है। लेकिन मेरे को अच्छे से याद है कि बेसमेंट में एक वाटर टैंक था जो बेसमेंट के लेवल से ऊपर था। वो पानी का टैंक हमेशा भरा रहता था, वो कभी बोरिंग के पानी से नहीं भरता था। देयर वाज नो पाइप इन इट। वो पाइप रेन वाटर वाला पाइप होता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, थ्रू आउट द ईयर मैंने कभी उस टैंक में पानी ना होना कभी नहीं देखा, अनलेस जब वो सफाई हो रही हो। तो देयर वाज अ होल पाइप विच वाज क्रिएटेड, ब्रिक बैट कोबा की हमारी छत थी, और उनमें 3 पाइप्स की निकासी थी। वो पाइप्स कहाँ जाके जुड़ रहे थे मुझे नहीं पता स्ट्रक्चर के अंदर, बट एक बस छोटा सा पाइप दिखता था जिससे पानी गिरता था उसके अंदर, और वो टैंक रिप्लेनिश होता था। क्योंकि उसी बेसमेंट में हम क्रिकेट खेलते थे, वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन इट, बट इट वॉज डन देन। ये मैं कम से कम 20 साल 25 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। इट वॉज जस्ट समथिंग दैट आई ग्रू अप विद। और बड़े होते होते मैं कहीं भूल गया कि ऐसा कुछ होता था मेरे घर में। लेकिन पिछले साल 2 साल से आई बीन थिंकिंग अबाउट ऑल दीज सोल्यूशंस, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम। तो बस वो सोल्यूशन कभी दोबारा बना ही नहीं। ये समस्या है बिल्कुल ऋषभ, एज यू राइटली सेड। पहले की जनरेशन जिन्होंने पानी की किल्लत देखी है, वो पानी की महत्ता समझते थे। मैं भी अपना ऐसा अनुभव शेयर कर सकता हूँ आपसे। मैं जिस हवेली में मेरा बचपन गुजरा, हमारे यहाँ भी एक कुआं होता था, और वो कुआं सदा खाली रहता था, और पीने का पानी हमारा आता था एक दूसरे कुएं से, जिसका देवी का मंदिर था, उसके बगल में वो कुआं था। तो बचपन में क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई हमारे घर में कुआं, हम इसका पानी नहीं पी पा रहे हैं, और वो बाहर से आ रहा है। वो कहार लेके आता था। तो माँ से पूछा मैंने कि भाई माँ ऐसा क्यों है, उस कुएं का पानी आता है वो तो मीठा है और हमारा खारा है। तो कहती थी, शी डिडंट हैव एन आंसर, शी सेड वहाँ देवी का प्रताप है। सो दिस केप्ट एंट्री, ये मन में क्यूरियोसिटी बनी रही कि भाई देवी का प्रताप तो ठीक है, बट बचपन में ठीक है समझ लिया, माने जैसे का एक वेल है जो खारी, एक वेल है जो खारी, एक वाली है।
तो when I came in this ministry in 2015 and got to know about the water issues, and तब पता लगा कि हमारे उस कुएं के पास 3 तालाब थे। एक देवी के मंदिर की तरफ एक झोड़ था, झोड़ बोलते थे वहाँ पे, झोड़ है, एक सड़क के दूसरी तरफ झोड़ था, और एक तालाब था जो वहाँ के लोकल जो राजा थे उन्होंने बनवाया था कभी। तो 3 वाटर बॉडीज़ थी, एंड दीज वाटर बॉडीज़ वर ट्रेडिशनल रेन वाटर स्ट्रक्चर्स। राइट। तो जहाँ पे वाटर भरा रहता था और वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते रहते थे तीनों से। वुड यू बिलीव, अभी मैं जाता हूँ अपने होम टाउन, उस देवी के कुएं का पानी भी खारा हो गया है। बिकॉज जो हमारी ग्रीड है, जो बात कर रहे थे कि भगवान ने गिवन सफिशिएंट फॉर एवरीवन्स नीड एज दे से, बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर्स हैव बीन इंक्रोच्ड अपॉन, और घर बन गए। तो जो वाटर रिचार्ज होता था उस कुएं का, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का, दैट हैज स्टॉप्ड, और दैट सेम वेल हैज़ बिकम खारा। तो इसकी महत्ता हमने बचपन में देखी। घरों के अंदर बर्तन, मैंने लोगों को कोरे बर्तन बोलते थे, केवल राख से मांजते थे लोग, पानी नहीं होता था लोगों के यहाँ। तो उन्होंने बचपन में पानी की महत्ता को समझा। लेकिन आजकल अर्बन एरियाज में क्या हो गया, आप बटन दबाइए पानी आ जाता है। तो जो भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है, जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल। हर घर में नल तो लग जाएगा, जल कहाँ से आएगा? तो जो सोर्स सस्टेनेबिलिटी का इशू है कि पानी कहाँ से लाएंगे, आइदर ग्राउंड वाटर होगा या ओवरग्राउंड होगा। एज आई सेड, पहले मैंने जैसे बताया ना कि 85% ऑफ द रूरल नीड इज मेट थ्रू ग्राउंड वाटर। तो कहीं ना कहीं बोरवेल बनेंगे। तो जल जीवन मिशन में बहुत बोरवेल बन रहे हैं जिसके थ्रू पानी घरों में पहुंचाया जाएगा। सो अनलेस यू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, ये हर घर नल से जल कैसे पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये चैलेंज आएगा बाद में। तो हमें ये देखना है कि हमें किस तरीके से एक एक आदमी को उसको जोड़ना है, लोगों को अवेयर करना है कि घर में पानी उतना ही यूज़ करें जितना, और उसके एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट। ऐसा नहीं है कि आप घर में अर्बन एरिया में कैसे करूँगा, मुझे रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना पड़ेगा। आप वो नहीं भी कर सकते हैं अगर आप वाटर एफिशिएंट टैप लगाइए। आप जब बर्तन धोते हैं तो सुबह देखना फट से टंकी, चाहे 1000 लीटर की टंकी हो, वो मेड आके बर्तन धोएगी और वो बड़ा सा घर करके पानी आएगा, एंड द एंटायर टैंक इज एम्प्टी। अगेन आप बटन दबा के फिर भर देते हैं उसको। राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन अवेयरनेस इशू। एक आपको वाटर सेंसिटाइज होना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट ए सस्टेनेबल सोल्यूशन। राइट। अर्बन एरियाज में यू कैन पे, बट वी कांट पे, नॉट एवरीवन कैन पे। यू कैन अफोर्ड ए टैंकर, यू कैन अफोर्ड ए बोरवेल, बट कितने लोग कर पाएंगे? एग्जैक्टली। सो दैट इज द चैलेंज। एक सर्कुलरिटी होती है सर, जीवन की वो सर्कुलरिटी नेचुरल और नेचर और भगवान ने बनाई हुई है। वो सर्कुलरिटी है कि कोई चीज़ दी है, उसको यूज़ करिए, उसको कंजर्व करिए, या उसको रीयूज़ करिए या रिसाइकिल करिए, और फिर वो वापस दीजिए। सो बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग, यू नीड टू गिव इट बैक। यू लुक एट एनीथिंग, आप सर्कुलरिटी इकोनॉमी में देख लीजिए, आप सर्कुलरिटी हमारे ह्यूमन सिस्टम्स में बनाए हुए सिस्टम्स में देख लीजिए, बट नेचर जो है उसका नेचर सर्कुलर है अपने आप में। तो पानी के साथ भी वो सर्कुलरिटी वही है कि हमें जो जल मिला है वो फिर इवेपोरेट होता है, बारिश के फॉर्म में वापस आता है, फिर वो इवेपोरेट होता है। वी आर दी एनॉमली जो उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रही। आपने जो बात बताई और जो कहानी सुनाई उस कुएं की जिसका पानी खारा हो गया है, दैन दिस इज़ द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जहाँ एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एब्सेंस की वजह से वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा, एंड द वाटर इज टर्न्ड हार्ड बिकॉज द नेचुरल स्टेट ऑफ दैट वाटर ओवर देयर इज़ हार्ड, बट वो रेन वाटर उसको ठीक कर रहा था। एनी अदर फ्यू additions that you would like to share with people so that we can urge them to sort of accept and start doing or working towards this revolution? It's a very small adjustment, बहुत बड़ी adjustment नहीं है लाइफ की है। बिल्कुल नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि घरों के अंदर अपना ज़रूर वाटर एफिशिएंट टैप्स लगाइए आप। बिल्कुल। आप पानी धोने में और नहाने में जो पानी वेस्ट होता है उसको मिनिमल यूसेज करिए, ये करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सोल्यूशन जैसे मैंने बताया आपको, घरों के अंदर इट्स पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन एन एग्जिस्टिंग हाउस ऑल्सो। तो आपको बटन दबा के जो पानी आता है, थिंक अबाउट इट, ये पानी कहाँ से आ रहा है? क्या ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी है या लोकल वाटर सप्लाई एजेंसी का पानी है, या ग्राउंड वाटर से निकल रहा है? ग्राउंड वाटर का उस एरिया के बारे में आप जानिए कि ग्राउंड वाटर पहले यहाँ पे किस लेवल पे था, अब किस लेवल पे चला गया। सो यू मस्ट ओन अप द इकोसिस्टम, यू मस्ट ओन अप द एनवायरनमेंट। आप जिस उसमें परिवेश में बैठे हुए हैं आप उसके बारे में जानिए, वरना आजकल टाइम ही नहीं है किसी को देखने सोचने का। राइट।
तो एयर क्वालिटी की बात की, तो एयर क्वालिटी में अभी मेरे बैच में जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी थे राजेश वर्मा, उड़ीसा काडर के IAS हैं, ही इज़ बिकम नाउ हेड ऑफ द एयर क्वालिटी यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर. सो आई वाज टॉकिंग टू हिम व्हेन ही टुक ओवर, दैट वाज द बेस्ट टाइम फॉर एयर क्वालिटी इन दिल्ली हैड इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली during this monsoon period. Now the deterioration has started. तो सेम थिंग वाटर के अंदर भी है. वाटर में डिटेरियोरेशन इज स्टार्टिंग एंड इज स्टार्टिंग एट ए रैपिड पेस. सब जगह आई हैव सीन इंडस्ट्रीज, दैट इज अनदर क्रिमिनल एक्ट विच द इंडस्ट्रीज डू. रादर देन क्रिएटिंग एन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट यू कैन रीयूज दी, एज यू सेड, द रीयूज की बात है कि उसको करें पानी को, वो पूरा एफ्लुएंट को बोरवेल के थ्रू दे पोल्यूट द ग्राउंड वाटर. इट इज all over India, and it's crime against humanity because you contaminate the entire water table, and it is happening. It's all chemicals going, and it is resulting into a lot of health issues for the people living nearby. उनको पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है उनके साथ. दूसरा आपने कहा कि एक सर्कुलैरिटी होती है, तो एक हमने नेशनल रिवर सिटी अलायंस की बात कर रहे हैं जो नमामि गंगे में हमने अभी ये पूरा ग्लोबल हमने साइन किया उसके लिए, GRCA, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस. तो आपके शहर में जो नदी आ रही है, उस नदी में जो एंट्री लेवल पे जो वाटर क्वालिटी है, जो वाटर का टोटल वॉल्यूम है, व्हेन इट लीव्स योर सिटी, एटलीस्ट इतना तो करिए कि वो रिवर उससे ज़्यादा पोल्यूट ना हो. दिस इज़ योर मिनिमम कमिटमेंट टू दैट रिवर. सो अर्बन प्लानिंग में रिवर को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है नमामि गंगे से कि रिवर के बारे में, जैसे दिल्ली में यमुना की तो बहुत बड़ा ग्रॉस एरिया है, तो जब वो एंट्री करती है वजीराबाद से और जब ओखला से निकलती है नदी, कितना वाटर का प्रॉब्लम है. एंट्री पे इट इज़ मच क्लीनर, बट व्हेन इट एग्जिट फ्रॉम ओखला इट इज़ हाईली पोल्यूटेड, एंड दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग सिटी. तो हम बातें करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है ना, कथनी और करनी में फ़र्क है. बातें बहुत अच्छी करते हैं, कहीं सोशल मीडिया में आएगा तो फट से थम्स अप कर देंगे उसको, विल सपोर्ट दिस, बट इन एक्शंस वी डोंट डू. So you can actually contribute. Say I have put the water efficient tap. घर से शुरुआत करें अपने. कोई भी ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. आप घर में कोई इनिशिएटिव लेंगे और लोगों को उससे जोड़िए. बहुत सॉल्यूशंस हैं और पूरे पैन इंडिया में लोगों ने वहाँ से उठे हैं. जैसे नैनीताल की ज़िले की बात करें, एक रामगढ़ आपने सुना होगा. तो रामगढ़ में एक बिश्त थे, उनके यहाँ पानी की बहुत समस्या थी. पहाड़ों की जो समस्या आपने शुरू में बताया ना कि पहाड़ों में कहते हैं आइए यहाँ पानी की बहुत समस्या Hills are dying, sir. तो पहाड़ों के लिए कहते हैं कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी पहाड़ों के काम नहीं आती. क्योंकि सारे पहाड़ी जो लोग हैं, सिंस उत्तराखंड के लोग यहाँ पे दिल्ली में और सारी जगह फैल गए हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है. तो पानी को कंजर्व करने के जो बिश्त हैं, उन्होंने 6 गाँवों की पानी की समस्या को समझा और उसका सोल्यूशन दिया. तो हर एक जगह में हमें अपने जगह जो आसपास के हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, क्योंकि वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं है जो क्लाइमेट चेंज और जो पर्यावरण के अंदर बदलाव आ रहा है उससे इफेक्ट नहीं आ रहा है. मेरी एक बैचमेट थी जो शी इज़ रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम, शी वाज द इंडिया रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशंस, रुचिरा काम्बोज. आपने कभी टीवी में सुना होगा. शी ऑलवेज पुटिंग अक्रॉस इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू विद द यूनाइटेड नेशंस. शी वाज हाई कमिश्नर इन साउथ अफ्रीका. तो एक बार उसका फ़ोन आया, तो आई वॉज रीडिंग अबाउट द वाटर प्रॉब्लम. ऐसे रुचिरा कितना पानी आता है आपके यहाँ? मतलब मुझे 2 बकेट मिलती हैं. सो एज हाई कमिश्नर इन साउथ अफ्रीका शी वॉज गेटिंग 2 buckets ऑफ वाटर. सो दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट इन इंडिया, इट इज़ ग्लोबल. सो वी हैव टू वेक अप कि पहाड़ों के अंदर भी वाटर के तरीके हैं कंजर्व करने के. आई हैव सीन, मैं तो चूँकि मंत्रालय में रहा हूँ इसमें, बिल्कुल, तो हमने सब जगह पूरी इंडिया में देखे हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, लेकिन हमें करना है. तो जैसे हमने जब जल शक्ति अभियान की शुरुआत की, सेकेंड वाला 2021 में, सो द स्लोगन विच वॉज गिवन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वॉज कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स. जहाँ बारिश गिरे वहीं पकड़ लो. एंड वी क्रिएटेड 50 lakhs रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स पैन इंडिया, और पूरे 700 जिलों को हमने उसमें कवर किया. अबाउट 256 हमारे डार्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कंसर्न है बहुत मेजर, but we covered all the 700 districts. This is from 2021 till in 21 itself. During the Jal Shakti Abhiyan 2, we constructed about 50 lakh structures, and that work continues. नरेगा के अंदर हम वाटर कंजर्वेशन का बहुत बड़ा चंक वाटर कंजर्वेशन में जाता है. Okay. बट एक कंजर्व किया वाटर, दूसरा वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाना, वो भी एक समस्या है. घरों के अंदर पानी को कैसे हम कम से कम बचाएं,
टैप को जैसे आते हैं छोटे छोटे, बट सोचते हैं कि भाई हमने 2 लीटर भी बचा ले तो उससे क्या फ़ायदा होगा, राइट, बट एवरी कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर्स। या इरीगेशन में ज़रूर हमें वाटर एफिशिएंसी करनी पड़ेगी, उसमें बहुत तरीके आ गए हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिल रही है, आप स्प्रिंकलर करते हैं, ड्रिप इरीगेशन करते हैं, वरना फ्लड इरीगेशन से तो सबसे ज़्यादा वाटर गजलर है इरीगेशन तो। बिल्कुल राइस की और शुगर कॉर्न की क्रॉप्स हैं, वी हैव टू शिफ्ट पीपल इन द इरीगेशन, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो, फ्रॉम दिस वाटर गजलर क्रॉप्स टू दी नॉन मोर वाटर एफिशिएंट। आप मिलेट्स में जाइए, आप बहुत सी काफ़ी स्टेटों ने स्कीम शुरू भी किया, हरियाणा ने किया, मेरा पानी मेरी विरासत, बिहार ने किया, राजस्थान ने मुख्यमंत्री योजना की, बिहार ने की, सब स्टेट इसमें लगी हुई हैं कि पानी हमें बचाना है, क्योंकि जब तक आप पानी नहीं बचाएंगे तो दिस विल बी ए मेजर चैलेंज फॉर दी पॉपुलेशन एंड विल ऑल विल सफ़र। पीपल हु कैन अफोर्ड विल गेट वाटर, बट व्हाट अबाउट दी 80%, 90%, 95% ऑफ पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो ये हम सबका एक वो है, एक सोशल दारोमदार है कि हमें पानी की एक एक बूंद को बचा के रखना है। या प्रकृति से जुड़ेंगे तो आपको प्रभु का रास्ता प्रकृति से निकलता है। आप प्रकृति को बचा के रखिए तो प्रभु कहते हैं ना, जो जल को जगदीश मानते हैं, जो बात कहते हैं हम, शुरू से कुआं पूजन जो घरों में होता था, उसका क्यों करते थे कुआं पूजन, बताइए आप? नहीं पता सर। क्योंकि वो जल का सोर्स था, इसलिए कुआं पूजन होता है घर में। वहाँ दीप जलाते थे, नहीं पूरी पूजा होती थी कुएं में जाके। शादी ब्याह हो तो शादी में भी कुएं के पास जाके बैठते थे, बिल्कुल होती थी। देखे थे कस्टम, देखे होंगे ना बचपन में। उसका सिग्निफिकेंस क्या था? उसका सिग्निफिकेंस ये था कि आप जल को जगदीश मानो। जल की हमारे तो वरुण देवता की बात करते हैं, बिल्कुल। तो जल को पूजा करने, तो देव दीपावली की जो बात करते हैं, काफ़ी जगह जिलों में हमने किया शुरुआत, जितने भी वाटर सोर्स थे उसके अंदर जाके दिया जलाया लोगों ने, तो उसको देव दीपावली का जो बात करते हैं। या फिर कहते हैं आजकल बोरवेल सोर्स है, पहले तो कुआं होता था ना, आजकल कुआं तो है नहीं, तो बोरवेल जहाँ लगा हुआ वहाँ पे दिया जलाते हैं, दिया जलाओ, तो पानी का सोर्स सबने भी जलाया हुआ है, जलाया ना, तो वही है। ग्रोइंग अप वी हैव डन दैट। सो ये सब इशू है, तो ऐसे लोगों को जोड़ना है। दे शुड अंडरस्टैंड कि खाली ये नहीं कि कुआं पूजन हो गया, आज गांव जाते हैं तो ट्यूबवेल पैसे लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर ये नहीं पता कुआं पूजन का सिग्निफिकेंस क्या है। वाह। सिग्निफिकेंस ये है कि आपको पानी को मानिए, तो ये मैसेज देना लोगों को, भाई कुआं पूजन का मतलब है आप वाटर सोर्स को पूज रहे हैं, उसको साफ रखना है और उसकी पानी को कैसे बचाना है, तो जिम्मेवारी हम सबकी। राइट। आप हिबड़े बाज़ार के बारे में बता रहे थे, कुछ सक्सेस स्टोरी। तो देश के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, वाटर वॉरियर्स कहेंगे, कुछ भी नाम दीजिए उनको, बहुत लोगों ने काम किया पानी बचाने में। तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह को सब जानते हैं, उनको वाटर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उनको बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं। बट ऐसी स्टोरी जैसे हिबड़े बाज़ार में जो थे हमारे, उनको अभी पद्मश्री मिला उनको, हिबड़े बाज़ार हैं, मिशन काकतिया है। इसी तरह हमारा सांचौड़ में, नर्मदा कैनाल में एक सांचौड़ का बहुत बड़ा अच्छा मॉडल है वाटर कंजर्वेशन का। या आप सीचेवाल में जाइए, वाटर क्वालिटी पे बहुत काम हुआ है। या आप इधर जाइए, लापोरिया की जो बात की मैंने, वहाँ पे उन्होंने बहुत काम किया। राइट। बिष्ट साहब ने, जिन्होंने रामगढ़ ज़िले में काम किया, रामगढ़ ब्लॉक में काम किया। राइट। तो ऐसे यहाँ भी इधर दिल्ली के आसपास भी जो SM सहगल फाउंडेशन, मैंने सुना है बहुत अच्छा काम करी है गुड़गांव के अंदर जी। तो ऐसे सब जगह लोग लगे हुए हैं। अभी हमारे मंत्री जी ने गुजरात के अंदर सूरत में एक बहुत बड़ी वाटर कॉन्क्लेव इसलिए की थी कि उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के बहुत सिंपल तरीके बताए गए। लेकिन शहरों के अंदर शायद वो तरीके पॉसिबल नहीं हो पाए, कम कर पाते हैं लोग, क्योंकि लोग मन से नहीं जुड़े। लेकिन गाँव में जो रूरल एरिया है, लोग बड़े प्राउड, they take a lot of pride in installing the rain water harvesting structures. राइट। हमारे दिल्ली में क्या होता है, हमें लगता है कि भाई पाइप दिखेगा तो यार घर की ब्यूटी खराब हो जाएगी। पर मैंने राजस्थान, हरियाणा में देखा है, बोला साहब इस पाइप के ऊपर हम लेबर रोल लगा दीजिए एहसास के, ताकि कोई पूछेगा तो उनको पता लगे पाइप क्यों आ रहा है नीचे। राइट। एंड दे टेक, पूरा पाइप घर के चारों तरफ से घूम के नीचे पहुंचता है और वहाँ से वाटर हार्वेस्ट होता है। सो दिस इज़ द कमिटमेंट ऑफ पीपल। जिन्होंने लोगों ने स्केर्सिटी देखी है ना, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की महत्ता समझते हैं। ये आइडिया बहुत अच्छा है सर। तो जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी बटन दबाने से मिल जाता है ना जिसको, उसको समझ में नहीं आता। बिल्कुल। सो कहते हैं कोई भी चीज़ जो फ्री होती है ना, इवन गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइजेस कि सब्सिडी देना बहुत अच्छा होता है, लेकिन पीपल शुड पे फॉर समथिंग। राइट। यू गेट फ्री देन इट इज़ वेस्टेड। आपने जल के बारे में एक कहावत कही थी अभी बीच में, तो वो एक तो वुड लाइक टू से इट अगेन। वो तो भाई जो जल को जगदीश माना है तो सदा की बात है। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे बचपन में देखा होगा, हम जा रहे हैं जो त्यौहार होते हैं, या बच्चा जब होता है तो कुआं पूजन होता है,
या शादी में होता है तब भी कुएं के पास हम एक सेरेमनीज करते हैं काफ़ी जगह, तो उसकी महत्ता लोगों को बतानी है। कुआं पूजन को एक वो बन गया कि हाँ भाई कुआं पूजन होना है बच्चे होने के बाद, बट कुआं पूजन का मतलब है कि कुआं हमारा वाटर का सोर्स है जो हमें जीवन देता है। तो नई जीवन एक दुनिया में आई है जो कुआं पूजन के टाइम, तभी से बताया जाता है कि इस स्रोत को आप बचा के रखिए, संजो के रखिए। राइट। आजकल घरों में कुएं नहीं है लेकिन बोरवेल तो हैं, तो हर एक बच्चा को ज़रूर दिवाली पे या कोई भी फेस्टिवल है कहना भाई एक दिया जला के आओ, वहाँ इसी पानी से अपना जीवन चल रहा है। राइट। तो जल ही जीवन है, पुरानी बात है। तो रहीम का आपने सुना होगा एक दोया कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुस चून। तो इसका मतलब है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून तो है ही, पानी गए ना उभरे, अगर पानी चला गया तो मोती मानुस चून, ना तो मोती मतलब ना तो वेल्थ बचेगी आपकी, मानुस मतलब आदमी नहीं बचेगा, और चून है मतलब खाने का भंडार। तो सब पानी से आता है। तो पानी गए ना उभरे मोती मानुस चून, तो पानी की महत्ता बच्चों को ज़रूर बतानी चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए जो हमारी एहसास एनजीओ जो कर रही है, हम स्कूलों में क्यों सिस्टम लगा रहे हैं कि हमें बच्चों को जोड़ना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। बिल्कुल। और इन्हीं बच्चों में से आप एक सिस्टम लगाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जिससे आप 2 लाख लीटर पानी तक बचा सकते हैं। इसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से बच्चे फ्यूचर में सम ऑफ देम विल बिकम वाटर चैंपियंस। दैट इज द मिशन ऑफ एहसास एनजीओ, दैट इज व्हाट वी डू। ब्रिलियंट सर। एंड आई थिंक इट कैन बिकम अ सोशल कॉज एज वेल। अगर जैसे हम लोग मंदिरों में दान करते हैं या हम कहीं भी किसी भी तरीके की चैरिटी वर्क भी करते हैं, तो मे बी वी कैन प्लेज इट एट सम इवेंट। किसी भी तरीके का घर में कोई भी इवेंट है, मे बी वी कैन प्लेज इट एज अ फैमिली दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस और डू दिस फॉर द सोसाइटी। हम लोग पानी के प्याऊ लगवाते हैं, मंदिरों में भी कई चीज़ें हम लोग करते हैं फॉर द सोसाइटी, पेड़ लगाते हैं हम लोग। सो देयर आर बंच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ देयर। मे बी वी कैन donate something like rainwater harvesting to public structures, or public access spaces. It will be a very good, I think it should be a good endeavor. People do that because हमारे एहसास में हमने काफ़ी स्कूलों में लगाए हैं इन दी मेमोरी ऑफ फैमिली के जो बड़े एंसेस्टर हैं या जिसकी डेथ हुई है। तो मैंने देखा दिस थॉट हैज़ कॉट ऑन। अब 13वीं जब होती है किसी की दिल्ली में और दिल्ली के आसपास, सो पीपल सिंस दे नो एहसास, so they announce that we will install 2 rainwater harvesting structures, pledge it. और वहाँ बोर्ड एहसास एनजीओ वहाँ जाके बोर्ड लगा देती है स्कूल में, बिकॉज वी हैव बीन गिवन परमिशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स कि आप स्कूलों में लगाइए। तो एक बोर्ड लगा देते हैं, इट्स इन द मेमोरी ऑफ सो एंड सो। राइट। और उस पानी से आप 2 लाख लीटर पानी एक साल में बचा रहे हैं। तो लोग कहते हैं साहब पितरों को जल देते हैं, जैसे अभी पितृपक्ष खत्म हुआ है तो जल तर्पण देने की बात है। मतलब सब ये तो 15-20 साल जब तक ये सिस्टम चलेगा, आप तर्पण दे रहे हैं अपने पितरों को, तो ये खाली सोचने की बात है। राइट। तो आप मन से जुड़ेंगे तो सबके सोल्यूशन निकल आएंगे। और दिस कैंपेन हैज़ टेकन ऑफ। तो हम जो स्टेटों में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से लोग फंडिंग देते हैं उसके लिए। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नोबल कॉज है ये। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग not just a social initiative, but I think it's an individual initiative as well. Within our households, within our buildings, we can always incorporate something like rainwater harvesting. And I think एक ये अटूट हिस्सा बन जाना चाहिए हर डिज़ाइन का, हर स्ट्रक्चर का। बिल्कुल। Any last thoughts that बस you मैं would like to कहता हूँ share? कि इनफैक्ट रादर देन individual will come forward of course, but जो अगर in case you know the architects, the designers, जब उनको पता लगता है ना एहसास के बारे में, एंड दे से कि एट व्हाट कॉस्ट यू आर इंस्टॉलिंग दिस सिस्टम, जैसे सर कोई भी नया घर बनेगा या कोई बिल्डिंग बनेगी विल कनेक्ट विद एहसास, बिकॉज हमारा इट्स ए सोशल मॉडल, इट्स एन एनजीओ मॉडल, it's not a commercial model. Yeah. So we can deliver a rainwater harvesting structure at much lesser the price what is available in the market. Right. It's not for profit. It's not for profit. That's the... And you have the best technical support. We have the Central Groundwater Board engineers, scientists with us. We have got Delhi Jal Board rainwater harvesting and a lot of people who are working in the water sector. Mm-hmm. So they get the best advice and the best price. So लोगों को जोड़ना हमें, तो architects को जोड़ना बहुत ज़रूरी है. So they should know what is the right solution. I visited one architect in Ghaziabad when he said, "Sir, आप आ जाएं." वैसे तो when he got to know about me, he said, "ऐसा NGO," but then when he got to know about me, he said, "Sir, मैं चाहूँगा कि आप मेरे ऑफिस आएँ और लोगों को बताएं." तो उसके यहाँ भी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना था वो वेरी फॉल्टी, मतलब ही वॉज एन आर्किटेक्ट बट ही हिमसेल्फ हैज इंस्टॉल्ड इन हिज ऑफिस जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाया हुआ था वो गलत था बिल्कुल, विच वॉज कंटेमिनेटिंग द ग्राउंड वाटर. Okay. Then I told him how to correct it. So
Is there a lot of technology that goes behind? There's no technology, but the process जो है वो नहीं पता होता उनको. A lot of people do surface water, जो जमीन पे पानी गिरता है उसको भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में डाल देते हैं, which should not be done because a lot of contamination on surface. कारों का पेट्रोल गिरा हुआ है, डीजल गिरा हुआ है, वो भी इशू है. It's only the rooftop water that you should channelize for रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Rooftops, mumties. हाँ, मतलब जो बेसिकली जहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है, छत का पानी है. सो मैं चाहूँगा कि सब लोग जुड़ें इससे बिल्कुल. और जल की एक एक बूंद बचाएं, सब जल संरक्षक बने और फ्यूचर में वी गेट सफिशिएंट वाटर. बट अगर इसी तरह से वाटर का यूसेज बढ़ता रहा, बाय 2050 we'll have less water than the usage, than the demand in India. Because the way the country is growing and the demand for water is going up, we have to ensure that there's a rainwater, water conservation, and there is a water use efficiency. Yeah. So with this message, I think I would say that everyone should contribute in whatever little way to water conservation. Absolutely. It has been our culture also to worship water and the resources of water. ये बचपन से हमें सिखाया भी गया है, हमारे इंडियन कल्चर का बहुत बड़ा अहम पार्ट है ये. दिस वाज मिस्टर जगमोहन गुप्ता जी, और आज हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस और उसके तौर तरीक़ों के बारे में बात करी. हमने जल के बारे में बहुत बात करी. जल ही जीवन है आज का मोटो नहीं है. कई दसियों साल पहले ये एक नारा कह लीजिए या एक मिशन कह लीजिए हमारे देश में बन गया था. एंड समहाउ वी आर एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो लैकिंग टू अंडरस्टैंड इट. आई थिंक देर आर फ्यू नोबल कॉजेज दैट आई वुड लव टू अटैच माई पॉडकास्ट विद. साफ हवा उनमें से एक है, एंड आई थिंक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी वन ऑफ इट. व्हाट डू यू गाइज थिंक? Write to us at India's #1 construction podcast @gmail.com. If you have any questions, you can email us. You can follow us on Instagram and message me there. I would love to answer your queries. अगर जगमोहन सर के लिए कोई specific calls हैं, कोई messages हैं, आप मुझे share करिए. I will relay them to him, and his team and his people can reach out to you. So yeah, thank you for tuning in. Have a great day.